بنگلہ دیش کی عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتکب قرار دے دیا۔ 3 الزامات کے تحت عمر قید کی سزا ہوئی۔ بنگلہ دیش کی مقامی جنگی جرائم کی عدالت انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل میں شیخ حسینہ کی غیر حاضری میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے قرار دیا شیخ حسینہ واجد نے طلبہ سے بات چیت کے بجائے طاقت کا استعمال کیا، مہلک ہتھیاروں کے استعمال کا حکم دے کر انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا۔ وزیر داخلہ پولیس چیف نے احکامات پر عمل کر کے انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا۔ سابق پولیس چیف نے تحقیقات میں ریاست سے تعاون کیا، سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے زندگی دی، اللہ ہی لے گا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور عوامی لیگ پارٹی کی رہنما شیخ حسینہ واجد نے عدالت کی جانب سے سزائے موت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کہا فیصلہ جاری کرنے دیں، مجھے پرواہ نہیں، الزامات جھوٹے ہیں، حامی پریشان نہ ہو، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ میں نے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو کھویا ہے، انہوں نے میرا گھر جلا دیا، ہم اسے نہیں بھولیں گے۔ فتنہ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورگلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ خارجی دہشت گرد احسان اللہ کے فتنہ الخوارج کے حوالے سے ہوش شبہ انکشافات۔ ویڈیو بیان میں اعتراف کیا کہ کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرنیٹ اور کمانڈر اسلام الدین کے لیے 3 سال تک سہولت کاری کرتا رہوں اور ہم نے بختر بند گاڑی اور تتور میں پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی۔ فتنہ الخوارج نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں افواج پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی دہشت گرد احسان اللہ نے کہا کہ کئی خارجی کمانڈر اپنے ذاتی مفادات کے لیے نوجوانوں کو بدکاری جیسے گناہ کی طرف بھی دھکیلتے ہیں۔ خارجی کمانڈر ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتے تھے۔ خوارج نے جھوٹ بولا کہ پاک فوج کافر ہے، مگر حقیقت میں خوارج خود کافر اور مرتد ہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو پتہ چلا کہ پاکستانی فوج تو اصل میں حقیقی مسلمان ہیں۔ میں نے پاک فوج کے جوانوں کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے نماز اور کلمے سیکھے جو پہلے نہیں آتے تھے۔ میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ پاک فوج کا ساتھ دیں تاکہ دہشت گرد عناصر کی روک تھام اور خاتمہ ہو سکے۔ ہم ان دہشت گرد خوارج کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ مذہب کے نام پر دہشت، نفرت اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی نمبر گیم کے نیرگے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا فیصل راٹھور کی وزارت عظمیٰ کے لیے 35 سے زائد ووٹوں کی حمایت کا دعویٰ۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے سادہ اکثریت میں 27 ووٹ درکار ہیں۔ شہباز اسپیڈ ان کراچی، کینٹ اسٹیشن کی قسمت جاگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے استقبال کیا۔ کینٹ اسٹیشن پر الیکٹرک سیڑھیوں، شالیمار ایکسپریس کے نئے دفتر اور ٹرین کینٹ اسٹیشن میں بنائے گئے 2 ویٹنگ لاؤنج کا افتتاح کریں گے۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کا پہلا فیصلہ، خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر حکم امتناع۔ وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس حسن رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے KPA حکومت کی اپیل پر سماعت کی۔ 2 حلف اور 2 آئینی جج اور وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز جسٹس روزی اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے نئے ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں منعقد ہوئی۔ وفاقی عدالت کے ججز، آئینی عدالت کے ججز، لاء افسران اور عدالتی اسٹاف کی تقریب میں شرکت۔ مصطفیٰ کمال کی سیاسی خوش فہمیاں، 28ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترامیم شامل کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ MKM رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا آنے والے دنوں میں بلدیاتی بل آئے اور منظور بھی ہوگا۔ وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رک جاتے ہیں۔
निचली सतह तक नहीं जाते। चारा नहीं खिलाएंगे तो दूध देने वाली गाय कराची दूध कैसे देगी? NFC का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। हुकूक नहीं मिले तो फिर नए मंसूबे का क़याम नागुज़ीर हो जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। MKM मुसल्लह अफ़वाज को मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुश्मन को दो टोक तंबी, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज़ अदा करने के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया। अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी हुई मिट्टी को भी मीज़ाल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। उन्होंने ग़ज़वा ओहद से मुतालिक बात की और कुरानी आयात का हवाला भी दिया। पाकिस्तान और चीन की नई दिफाई क़ुरबतें, पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। मुहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। मुल्क का करंट अकाउंट खसारे का शिकार। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में करंट अकाउंट 11 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारे का शिकार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में करंट अकाउंट 8 करोड़ 30 लाख डॉलर सरपरस्त रहा था। अक्टूबर में मुल्की दरामदार 5.27 अरब डॉलर और बरामदार 2.74 अरब डॉलर रही। वज़ीर ख़जाना ने बताया, गुर्बत होती क्यों है? पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। माहौलियाती तब्दीली भी असले हाज़िर का बड़ा चैलेंज है। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का तकरीर से खिताब। कहते हैं, बढ़ती हुई आबादी माहौलियाती आलूगी का बाइस भी बनती है। रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए आबादी का तवाज़ुन ज़रूरी है। मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए बेहतर मयार ज़िंदगी आबादी कंट्रोल करने से ही मुमकिन है। कहाँ पंजाब कहाँ सिंध, ये बोले गवर्नर पंजाब। सिंध हुकूमत पंजाब की निस्बतन सेहत की सहूलियात बेहतर और मुफ्त मुहैया कर रही है। पंजाब के देही इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं शरीफ ज़रूर हूँ मगर बदमाशों को कान पकड़वाना भी जानता हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फतह जंग अटक में स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया। ब्लड बैंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा, जब तक हिम्मत है पंजाब की गरीब और सफ़ेद पोश अफराद की खिदमत का सफ़र जारी रखूँगा। बरतानवी जरीदा गार्जियन बना पाकिस्तान का हमजुबान। गैर कानूनी तारिकीन वतन दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन चैलेंज। दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की तरह बरतानिया में भी पनाह गुज़ीन शदीद चैलेंज बन गए। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक पनाह गुज़ीनों का निज़ाम काबू से बाहर है और मुल्क को तकसीम कर रहा है। अगर तारिकीन के आबाई ममालिक महफूज हो जाएँ तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा, चाहे उनके पास जायदाद ही क्यों ना हो। पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल के बजाय आर्जी हैसियत दी जाएगी और हर 2 या 2.5 साल बाद दरख्वास्त देनी होगी।
गैर कानूनी तरीके से आने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी हिजरत हमारे मुल्क को तकसीम कर रही है और बरादरियों में दरारें पैदा हो रही हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन कवानीन को तोड़ते हैं, निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और सज़ा से बच निकलते हैं। मोदी की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दियाँ बेनकाब। कनाडा और अमेरिका में भारतीय सरकारी और हुकूमती हुक्काम की मुबैना मुदाखलत पर नए इंकशाफात। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आ गए हैं। माहिरीन का कहना है कि भारत की रियासती दहशतगर्दी अब बैनुल-अक़वामी सरहदों को पार कर चुकी है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच ने रियासती इदारों को जहरीला कर दिया है। मोदी अमित शाह के दौर में भारत एक गैर जिम्मेदार और जाहर रियासत में तब्दील हो चुका। भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क मुखालिफ आवाज़ों को खामोश कराने के लिए खुफिया कार्रवाइयों में मुलव्वस पाई गई। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और अमेरिका में नाकाम हमले का इल्ज़ाम भारतीय एजेंसियों पर आए। माहिरीन का कहना है ये सफारतकारी नहीं, सरहद पार दहशतगर्दी है। भारत अब अपने नाक़दीन और अक़लियतों को बैरून मुल्क भी निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी को भारत के बढ़ते हुए रियासती तशद्दुद पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तस्दीक। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। पहलगाम से लेकर दिल्ली, कनाडा से लेकर अमेरिका तक कहानी एक, किरदार मुख्तलिफ। भारत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की आम आजगा बन चुका है। कराची के चिंगची रिक्शे क्या होगा अंजाम। सिंध हाई कोर्ट में शहर की मरकजी शाहराहों पर चिंगची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। रिक्शों के रूट्स का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन अदालत में जमा। अदालत की सिंध हुकूमत को 3 हफ्तों में मसाइल हल करने की हिदायत। कराची के इलाके मलीर में रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस मुलजिम कासिम उर्फ कासू गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिम लियारी में मुख्तलिफ गैंग वॉर का हिस्सा रह चुका है। अहमदपुर शर्किया मोटरवे M5 पर कोच शरीफ के करीब खौफनाक हादसा। बस की टक्कर से पेट्रोलिंग मोबाइल तबाह। मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस। कराची के इलाके गार्डन में मेनपुरी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पुलिस की कार्रवाई। लाखों रुपए की मालियत की मेनपुरी बरामद। शातिर अगवाकार फौजियों के साथ कुत्ते भी अरगमाल। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने 4 अफराद को हनी ट्रैप का निशाना बना डाला। चारों अफराद चोरी की वारदातों का कुत्ते के जरिए सुराग लगाया करते थे। कच्चे के डाकुओं ने फौजी टीम को कुत्तों समेत कश्मीर के करीब बुलाया। फेक पर्सन के जरिए ट्रैकर चोरी की वारदात का सुराग लगाने का टास्क दिया गया। मगवियों के वर्सा का थाना सिटी के बाहर एहतजाज। 4 मगवियों और कुत्तों के अगवा का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मगवियों की आखिरी लोकेशन कश्मीर से लाई है। अहमदपुर शर्किया में अड्डा फैजवाह के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। भाई जाँ बहक, बहन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस को कार और कार ड्राइवर की तलाश। कसूर में बदबख्त बेटे ने गैरत के नाम पर मां को मौत के घाट उतार दिया। 25 साला शकीउल कल्ब जीशान ने मां पर कुल्हाड़ी के कई वार किए। कत्ल के बाद मुलजिम ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। बागपतन में जमीन के तनाज़े पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम असलम फरार। लाश अस्पताल मुंतकिल। कसूर में कोट राधा किशन चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर सड़क किनारे खड़ी फैमिली पर चढ़ गया। 10 साला मासूम बच्चा जा बहक। इलाका मकीन मुश्किल। डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न होने पर डंपर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
کراچی کے علاقے گارڈن میں اسٹریٹ کرائم منشیات فروش اور گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 3 ملزمان گرفتار۔ حیدرآباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار، اسلحہ برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت نصیب اللہ کے نام سے ہوئی۔